Hello students. So today we are going to see the formula of slope of a line using 2-point form. So what we are going to see, we are going to see slope of a line using 2-point फॉर्म. इज इट क्लियर? तो बच्चों यानी यहाँ पे हम स्लोप निकालने वाले हैं नॉट यूजिंग द इंक्लिनेशन, नॉट यूजिंग द थीटा, बट बाय यूजिंग द 2 पॉइंट्स दैट लाई ऑन द लाइन. क्लियर है बच्चों? देखिए तो ये है x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. सपोज दिस इज द लाइन L जिसका स्लोप हम लोगों को निकालना है. I take 2 points. This is point A and this is point B. So let the coordinate of point A is x1 comma y1 and the coordinate of point B is x2 comma y2. Is it clear? Now using these 2 coordinates I am going to find the slope of the line. Is it clear? So इसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको ऐसे करके नीचे एक लाइन बनाना पड़ेगा. Draw a perpendicular line. Is it clear? So this is also perpendicular, this is also perpendicular. Now what this will be, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा बच्चों? This will be x1 and what this will be बच्चों, मैं इसको बाहर की तरफ बना देता हूँ. So this will be y1. This total will be क्या होगा बताइए? x2. और ये पूरा हो जाएगा y2. Is it clear? Now I am drawing a perpendicular line again. So I call this as C. This D and this is E. Is it clear बच्चों? So what will be DE measure? DE will be x2 minus x1. ठीक है बच्चों? अगर आपको DE निकालना है, पूरा निकालना है DE, तो DE कैसे निकालेंगे बताइए? So DE equal to OE. I will write here. Okay. तो DE equal to OE minus OD. OE is x2 minus x1. तो बच्चों ये जो DE है ये हो जाएगा x2 minus x1. ठीक है. तो now you can say that AC is equal to DE. Why AC is equal to DE? Because A, B, D, E is a rectangle. Is it clear? So therefore you are going to get DAC as x2 minus x1. बच्चों तो ये जो AC है ये हो जाएगा x2 minus x1. Similarly, how will you find BC? बच्चों BC कैसे निकालेंगे बताइए? BC के लिए आपको पूरा BE से ये CE माइनस करना पड़ेगा. तो you will write BE minus CE. ठीक है बच्चों? What is BE? It is y2 minus y1. Okay? सो बच्चों ये जो BC है ये पूरा देखिए, ये जो पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा y2 minus y1. ठीक है बच्चों? इज इट क्लियर? सो नाउ यू सी, सपोज आई एक्सटेंड दिस लाइन अप टू हियर. ठीक है बच्चों? दिस y एक्सिस हैज नो रोल हियर टू परफॉर्म. यू नो दैट. सपोज दिस इज इंक्लिनेशन थीटा. नाउ दिस, इफ दिस इज थीटा, ये एंगल भी बच्चों देखिए हो जाएगा थीटा. कैसे हो जाएगा बताइए? लॉजिक लगाइए. आई कैन से दैट ए सी इज पैरेलल टू व्हाट? दिस लाइन. दिस आई कैन कॉल इट एज एक्स एक्सिस एंड दिस L इज ट्रांसवर्सल. ठीक है बच्चों?
आप बताइए क्या बोलेंगे? देन एंगल BAC, this angle is equal to angle A, let me call this point as intersection point है बच्चों, इसको नाम क्या देंगे? F दे देते हैं, ठीक है। सो इज इक्वल टू एंगल AFD, ठीक है बच्चों, इसको नाम क्या देंगे? दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल, so this is करस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर आपको जो ऊपर का एंगल मिला है BAC, ये भी हो जाएगा थीटा, ठीक है बच्चों। इफ दिस इज थीटा, दिस विल बी थीटा, करेक्ट। नाउ टेल मी व्हाट यू विल गोइंग टू डू। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई इन ट्रायंगल ABC, I am going to find tan theta because I know tan theta is the slope. So what is tan theta? Pandit Badri Prasad Hari bole, you know that, right? So tan theta is perpendicular by base. Perpendicular is BC and the base is AC. BC you found it how much? It is y2 minus y1 by x2 minus x1, ठीक है बच्चों। तो अल्टीमेटली आपको tan theta क्या मिला बताइए? tan theta you got y2 minus y1 by x2 minus x1. What is tan theta? M, slope. So my dear student, ultimately you got y2 minus y1 by x2 minus x1, ये है slope। तो बच्चों यहाँ पे जो थीटा है आप इसको मान सकते हो, दिस इज केस 1 वेयर थीटा इज acute, because here theta value is less than 90 degree. So next case we are going to solve where theta is obtuse and we are going to see what is the formula of slope, ठीक है। तो बच्चों अभी from this we got the formula of slope as y2 minus y1 by x2 minus x1. तो यानी without inclination you can find the slope using the coordinates of 2 points that lie on the line, ठीक है बच्चों। यहाँ पे y एक्सिस का कोई रोल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व यूजिंग ऑब्ट्यूस एंगल। इज इट क्लियर? ओके। बच्चों अभी हम बात करेंगे केस 2 के बारे में। केस 2 में क्या है बच्चों? थीटा इज ऑब्ट्यूस, ठीक है बच्चों। नाउ हाउ द फिगर विल बी, यू सी वाई का यूज नहीं है बच्चों, फिर भी मैंने बना दिया। तो ये जो लाइन है दिस इज L, so this you are going to get is theta. Now this theta is obtuse over here because this is more than 90 degree. Is it clear? Okay, now I take 2 points. Suppose this is 1 point, this is another point बच्चों। तो ये जो पॉइंट है आप इसको बोल सकते हो x1, y1, दिस इज B, x2, y2, ठीक है बच्चों। आई एम जस्ट ड्रॉइंग ए परपेंडिकुलर लाइन डाउन, परपेंडिकुलर लाइन डाउन एंड दिस लाइन ABCDE, ठीक है। सो आई एम रिमूविंग द y एक्सिस फॉर सिंपलीसिटी, ठीक है बच्चों। चलिए अब बताइए एक एक करके क्या करेंगे। आई एम जस्ट मार्किंग द पॉइंट O, दैट इज ओरिजिन, ठीक है। सो दिस फुल पॉइंट व्हाट इज दिस? सो दिस इज x1 and only this will be x2. is it clear? because this is the origin. okay, बना देता हूँ मैं भाई एक्सिस भाई, बिकॉज ओरिजिन देखने के लिए हेल्प होता है। उसके बाद ये जो पॉइंट है बच्चों ये है y1 and this complete will be what? y2. is it clear? so now first I'm going to hunt DE. now from the figure tell me what is DE? DE is OE minus OD. so I will write OE minus OD. OE is x1 minus x2. is it clear? next बच्चों DE equal to AC. तो you can write DE equal to AC, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे?
ब्रैकेट में लिखेंगे सी डी ई ए इज ए rectangle, therefore you will be getting ACS x1 minus x2. So you got this ACS x1 minus x2. ठीक है बच्चों. Next we are going to find BC. So what is BC? Tell me. ये BC क्या होना चाहिए? BC is BD minus CD. So you can write BD minus CD. What is BD? BD is y2 minus y1. This is y2. Dear students, this is y1, so that means this has to be y1. तो ये y1 होगा तो बच्चों ये भी क्या रहेगा y1. तो ये पूरे y2 से y1 को माइनस करेंगे, आपको मिल जाएगा BC. Now बच्चों this is theta, this angle is theta. So what this angle will be? This angle will be 180 minus theta. Is it clear? If this is 180 minus theta, this angle has to be 180 minus theta. Is it clear? तो बच्चों अगर इसको पूरा लिखना है आप तो आप एक नाम करते हैं इसको ABCDEF में नाम देता हूँ. आई एम राइटिंग ए सिंपल स्टेप नाउ. एंगल ACF प्लस एंगल this intersection point also we have to give some name. Let us give the name as G. Okay, so we will write angle AGF plus angle AGE equal to 180 degree linear pair. So this is theta plus AGE 180 degree. Angle AGE 180 minus theta. Is it clear? So I got angle AGE as a 180 minus theta. Now you see AC and I can say AC is parallel to DF. AC is parallel to DF. ये जो AC है ना बच्चों, ये AC और ये DF, सारा फिगर एक साथ मत देखिए. This AC and this DF is parallel, okay, and this and L is transversal. L is transversal. Therefore angle, इस एंगल का नाम बताइए BAC. एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम बताइए AGE. AGE you can name it as corresponding angle. Therefore angle BAC equal to 180 minus theta. मेहनत करके यहाँ तक पहुँच गए बच्चों. 180 minus theta. Now we are going to use the formula of tan. Correct? तो मैं इसको मीट दूँ बच्चों, इसको लिख दीजिएगा अच्छा से. I am rubbing. Now we are getting into in triangle BAC. So what I can write? Tan 180 minus theta is equal to perpendicular. Perpendicular is opposite side. This is BC by AC. Is it clear? Now tan 180 minus theta is, you know what is that? It is minus tan theta. याद रखना बच्चों, minus tan theta. तो what is BC? BC हम लोगों को क्या मिला था बताइए? y2 minus y1 मिला था हम लोगों को BC. I got y2 minus y1. और AC क्या मिला था बच्चों? x1 minus x2. ठीक है. नेक्स्ट इज tan थीटा. ये माइनस को मैं वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो माइनस y2 minus y1 by x1 minus x2. Tan theta, this minus I am shifting downward, denominator y2 minus y1 minus x1 minus x2 denominator. Tan theta, तो बच्चों ये हो जाएगा y2 minus y1 by, बिकॉज माइनस जब अंदर जाएगा तो आई विल बी गेटिंग माइनस x1 प्लस x2. तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई
x2 minus x1. So my dear student, here also I got the same formula of slope, that is numerator is y2 minus y1, denominator is x2 minus x1, and the same formula I got when theta was acute angle. So that means either acute or obtuse, the slope of the line is m equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. इस बात को याद रखिए बच्चों. डेरिवेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, द रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट. काइंडली कीप द रिजल्ट इन द माइंड. ठीक है बच्चों. तो दैट मीन्स अभी तक आपको स्लोप का दो फॉर्मूला पता चल गया. एक फॉर्मूला है m इक्वल टू tan थीटा वेयर थीटा इज इंक्लिनेशन. दूसरा फॉर्मूला है m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 वेयर x1 y1 and x2 y2 are the coordinates of 2 points that lie on the line. Is it clear students? Okay. बच्चों यहाँ पे आपको स्लोप निकालना है. फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3,-2 एंड -1,4. ठीक है बच्चों. चलिए, तो सपोज दिस इज द लाइन L. So this point I will call it as A, that is 3,-2, and this point is B and that is -1,4. आपको निकालना है स्लोप. ठीक है बच्चों. सबसे पहले नाम देते हैं. लेट A x1, y1 equal to A 3,-2. Next is B x2, y2 b -1,4. ठीक है बच्चों. लेट स्लोप इक्वल टू m. ठीक है बच्चों. सो m का फॉर्मूला बताइए क्या है. y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. तो y2 क्या है बच्चों उसमें 4 माइनस ऑफ -2 -1 -3. तो m इक्वल टू 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई -4. m इक्वल टू 6 बाई -4. m इक्वल टू कट करेंगे तो बच्चों -3/2 आ जाएगा. वेरी सिंपल. ऐसे करके आप आराम से स्लोप निकाल सकते हैं. ठीक है बच्चों. तो ऐसे करके बच्चों एग्जाम्पल लिख दीजिए. करके दिखाना है मेरे को. एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 207 का एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन नंबर 1 to ABCD करके व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे को बच्चों. ठीक है. और उसके बाद एक्सरसाइज का आप लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का भी आप जल्दी कर नहीं पाओगे, थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा. ठीक है बच्चों. चलिए नाउ सो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बार बार यूज़ करना पड़ेगा, हर कदम में यूज़ करना पड़ेगा. दैट इज कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस. ठीक है बच्चों. नाउ देखिए वेरी सिंपल. दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस. Suppose these are the two lines. This is line L and this is line M. These two lines are parallel. So when L is parallel to M, then if this angle is alpha, this angle has to be alpha because they are corresponding angles. They are corresponding angles. Is it clear? Now tell me, as per our formula, what is slope of L? Slope of L will be tan alpha. What will be slope of M? Again it will be tan alpha. Is it clear? So this is 1 and this is 2. From 1 and 2 what can you conclude? We can conclude that slope of L इज इक्वल टू स्लोप ऑफ m. सो दैट मीन्स बच्चों जब भी दो लाइन का स्लोप सेम होता है तो आप समझ जाना
कि both the lines are parallel. Is it clear? So kindly write it down. Suppose I say that the slope of this line is 2, then these two lines are parallel to each other. तो इस लाइन का भी स्लोप क्या होगा बच्चों? 2 होगा. यानी if these two markers are parallel to each other, अगर ये दो मार्कर पैरेलल हैं बच्चों, तो अगर इसका स्लोप 10 है तो इसका स्लोप भी 10 होगा, याद रखना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कंडीशन ऑफ पैरेललिटी के बारे में. परपेंडिकुलर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैन. कंडीशन ऑफ, वी विल डिस्कस व्हाट? परपेंडिकुलर लाइंस. ठीक है बच्चों, अब परपेंडिकुलर लाइंस का क्या है ध्यान से देखिए. नाउ अगेन दिस इज एक्स एक्सिस. सपोज दिस इज अ लाइन. I say this line is L. I am drawing one perpendicular line to this. तो ये जो एंगल है बच्चों 90 डिग्री है. This line is M. Okay. Suppose L makes an angle of alpha with the x-axis. So what M will make an angle? तो बताइए बच्चों M का एंगल क्या होना चाहिए? M का एंगल क्या होना चाहिए? Any logic? It's very simple. Because from here to here it is alpha. यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है. बिकॉज दिस L इज़ रोटेटेड. ये L को मैंने रोटेट कर दिया बाई 90 डिग्री. तो अल्फ़ा के साथ ये 90 ऐड हो जाएगा बच्चों. तो आपको ये जो पूरा एंगल है ये मिलेगा अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री. इज़ इट क्लियर? सो वी कैन से दैट इंक्लिनेशन ऑफ L is alpha, inclination of M is alpha plus 90 degree. Is it clear बच्चों? तो alpha plus 90 degree. Now tell me, slope of L equal to M equal to tan alpha. स्लोप ऑफ, इसको m नाम नहीं देते बच्चों, p नाम देते हैं. तो स्लोप ऑफ p इक्वल टू m डैश मान लेते हैं इज इक्वल टू tan 90 प्लस अल्फ़ा, बिकॉज द इंक्लिनेशन इज 90 प्लस अल्फ़ा. नाउ m डैश इज इक्वल टू दिस इज, यू नो, इट इज माइनस कॉट अल्फ़ा, माइनस कॉट अल्फ़ा. सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2. नाउ आई डू m डैश को ऐसे लिख सकते हैं. चलिए ऐसे करते हैं, 1 इंटू 2 करिए बच्चों, 1 इंटू 2. तो क्या मिलेगा बताइए? m इंटू m डैश इज इक्वल टू tan अल्फ़ा इंटू माइनस कॉट अल्फ़ा. ठीक है ना बच्चों? m डैश इज इक्वल टू tan अल्फ़ा. इसको बच्चों लिख सकते हैं 1 बाई tan अल्फ़ा. tan अल्फ़ा कैंसिल. m डैश इज इक्वल टू माइनस 1. तो m इक्वल टू बच्चों माइनस 1 बाई m डैश. तो बच्चों दैट मीन्स व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द स्लोप ऑफ ए लाइन कैन बी फाउंड आउट बाई फाइंडिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ अदर लाइन एंड वी हैव टू पुट द नेगेटिव. ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर आपको एक लाइन का स्लोप दिया है, मान लीजिए बच्चों इसका स्लोप दिया है 2, जैसे L का स्लोप दिया है m इक्वल टू 2. देन जो P का स्लोप है, देखिए P का स्लोप कैसे निकलता है, आपको दूसरे लाइन का स्लोप को रेसिप्रोकल करके नेगेटिव लगाना है. तो उसी तरह से 1 का रेसिप्रोकल 1/2 है और सामने नेगेटिव लगाना है, तो आपको इसका स्लोप निकल जाएगा. ठीक है बच्चों, दैट मीन्स लॉजिक सिंपल है. इफ़ यू नो द स्लोप ऑफ वन लाइन then the slope of the perpendicular line can be found out by finding the reciprocal and then putting negative. तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल. ठीक है, तो मैं लिखता हूँ एक सेंटेंस, देखिए बच्चों, स्लोप ऑफ 2 perpendicular lines are negative reciprocal of each other. Very important line.
द स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से समझ में आ गया। देखिए m कैसे निकालना है, आपको m डैश को रेसिप्रोकल करना है। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ m डैश? 1/m डैश, और सामने एक नेगेटिव लगा देना है। ठीक है बच्चों, तो वंस अगेन एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों, इसका जो स्लोप है वो है 2/3। ठीक है बच्चों, इसका स्लोप कैसे निकलेगा बताइए? 2/3 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 3/2 करके सामने एक नेगेटिव लगा दीजिए, देन यू विल गेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ओके, सो दैट मीन्स व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर आइडेंटिकल, व्हेन द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यानी आपको रेसिप्रोकल निकालना है और उसके सामने नेगेटिव लगा देना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से स्लोप से आप एक लाइन का स्लोप से दूसरी लाइन का स्लोप को निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट स्लोप। तो बस स्लोप निकालने का दो ही फार्मूला है, एक है tan थीटा वाला फार्मूला, दूसरा है y2 - y1/x2 - x1 वाला। और बच्चों, दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप एब्सोल्युटली सेम होगा, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तब एक का अगर स्लोप पता है, दूसरे लाइन का स्लोप के लिए आपको उसको रेसिप्रोकल करके सामने नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो वंस अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए बच्चों, इसका स्लोप है 1/2, तो बताइए इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा? 2 के सामने माइनस, दैट्स ऑल। यानी 2 का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2 है और सामने नेगेटिव है। सपोज इस लाइन का जो है स्लोप है -3/2, तो बच्चों इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा? रेसिप्रोकल करिए, -2/3, इसको और एक माइनस डालिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। तो ऐसे करके आप एक लाइन का स्लोप से दूसरी लाइन का स्लोप बढ़िया से निकाल सकते हो। एंड द रिलेशन इज m डैश इज इक्वल टू -1, और पैरेललिटी में m इक्वल टू m डैश। तो इन द केस ऑफ पैरेलल m इक्वल टू m डैश, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर m डैश इक्वल टू -1। सो यू कैन गेट m इक्वल टू -1/m डैश, और m डैश आपको मिलेगा 1/m। दैट मीन्स दे आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओके बच्चों, सो आई होप को समझ में आया होगा बच्चों, और फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं एंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चन आंसर ऑफ स्लोप टॉपिक, करेक्ट।